So today we are going to understand the concept of a dynamic routing. Static routing में आपको पता है कि that we have to manually configure our switches and router. We have to make a use of a CLI in order to work with the static routing. But here we are going to implement a dynamic router in which you can make a use of a GUI. और इस डायनामिक राउटिंग में हम जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. ओके, so let's proceed with the demo. So first of all here I am going to make a use of a generic switches, generic router. तो मैं राउटर में एक जेनेरिक वन लूंगा और स्विच में मैं एक जेनेरिक स्विच लूंगा. So let me just make a use of them. So I am going to make a use of a generic router and I am going to give this a name as a router 0. Again I am going to make a use of a router 1. Okay. Now here I am going to make a use of my generic switch. एक मैं generic switch ले लेता हूँ to my router 0 and for my router 1. And finally what exactly I am going to do, I am going to make a use of a physical end devices, and for physical end devices I am going to make a use of a generic PCs. Okay. Let me just make a use of generic PCs. The cable which I am going to make a use is optical. Let's switch में मैंने generic one लिया, generic, simple generic. Okay, empty वाला मत लेना, आप एक generic वाला लेना. Now the cable which I am going to make a use of is a copper straight through cable. So what you have to do is you have to click on this PC 0, select this fast Ethernet 0, click on your fast Ethernet 0/1. Then again you have to make a use of this copper straight through cable, select this fast Ethernet option, fast Ethernet 1/1. In the same scenario I am going to connect this PC2 with my switch 1 as well. And in order to connect this switch with this router, I am again going to make a use of this copper straight through cable. So I am going to select, let's say, so now in order to connect my switch with this PC, I am going to with this switch with this router, I am going to make a use of copper straight through cable. So I am going to select, let's say, just a minute. Fast Ethernet 0/0. Let me just connect it over. Execute. So let's say इसको मैंने कर दी 2/1 पे. Again I am going to make a use of copper straight through cable. Fast Ethernet 0/0, and I am going to connect it with 2/1. And in order to connect these two routers, I am going to make a use of a serial DTE cable. DC का आपने यूज़ कर लिया कि क्लॉक रेट के लिए, बट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ DTE. मैं कोई यहाँ पर अभी कोई क्लॉक रेट ऐसा यूज़ नहीं करनी, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ सीरियल पोर्ट 2,0, सीरियल पोर्ट 2,2/0. सो लेट्स से इन दोनों कनेक्शन के लिए मैं एक IP एड्रेस यूज़ करने वाला हूँ, और IP एड्रेस मैं लेट्स से एक बार यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ 192.168.0.0. ओके, तो इन दोनों कनेक्शंस के लिए मैं कौन सी यूज़ करूँगा, 0.0. इसी सेम सिनेरियो में लेट्स से यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ 192.168.2.0. तो जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा 192.168.2.0 इन दोनों के IP एड्रेसेस के लिए. ओके, इस स्विच का भी लेट्स से मैं एक IP एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूँ जो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा फॉर दिस नेटवर्क. इस नेटवर्क के लिए मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे ले लेता हूँ और उस लेट्स से मैं उसको नाम देता हूँ 192.168. तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए मेरा ये 0 तो यही रहेगा, बट आई एम गोइंग टू चेंज माई IP एड्रेस. लेट्स से इसको मैंने कर दिया 0.1. ये इन दोनों का है, राउटर से और स्विच वाले का. अभी इनकी केबल का एड्रेस है ये, और लेट्स से हाँ इनकी केबल का एड्रेस देंगे अभी हम कनेक्शंस के लिए. हाँ तो यहाँ पर आप देखो फास्ट इथरनेट पे ये वाला एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या होगा 0.1. नहीं, डिफ़ॉल्ट गेटवे बस मैं दे रहा हूँ, मैंने अभी कोई वो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया, डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया. अभी आप करके देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स से इसका भी मैं एक डिफ़ॉल्ट गेटवे देता हूँ 192.168.2.1. तो इसी तरीके से मैं अपने PCs को भी एड्रेस देता हूँ. एक लेट्स से मैं यहाँ पर एड्रेस देता हूँ इस वाले PC1 को 192
0.168 डॉट, तो डिफॉल्ट गेटवे सेम रखूंगा, इसको मैंने दे दिया लेट्स से 0.2. आई एम जस्ट सिंपली कॉपिंग दिस. और इस वाले लेट्स से पीसी के लिए मैं एड्रेस ले लेता हूँ 192.168.0.3. अब इस PC2 के लिए आप ये वाला IP एड्रेस ले लेना 2.2 कुछ भी करके, या जो भी आपने दिया हो. तो आई एम गोइंग टू चेंज इट 2.1. और इसका लेट से मैंने ले लिया 192.168.2. चलो 4 देता हूँ, इसको मैं 3 देता हूँ. ये लेट से 2.3, इसको 2.2 कर देता हूँ. तो इसको लेट से आई एम गोइंग टू गिव 2.3. तो ये आप भी करने अपने अकॉर्डिंग दे देना. IP कॉन्फ़िगरेशन बस इसको याद रखना है कि इसको क्या दे देगा. ओके. और लेट से मैं इन दोनों राउटर्स के भी बीच में जो IP एड्रेस देने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ 192.168.1.0. तो ये है मेरा कंप्लीट नेटवर्क इंटरफेस डायग्राम. अब इसको हम करेंगे डायनामिक राउटिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर. सो लेट्स से अभी मैं पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ. यू हैव टू सेलेक्ट दिस डेस्कटॉप. इन पीसीज को मैं IP एड्रेसेस देता हूँ. तो जो मैंने इस पीसी के लिए IP एड्रेस लिया है वो यूज़ किया 192.168.0.2. सबनेट मास्क इसका यही रहेगा. और जो सर डिफॉल्ट गेटवे है वो ये रख रहा हूँ 0.1. दिस इज गोइंग टू बी माई डिफॉल्ट गेटवे. हाँ, अभी आपको पीसी की कॉन्फ़िगरेशन दे दो. तो लेट्स से IP कॉन्फ़िगरेशन में इस वाले पीसी का जो मैंने IP एड्रेस रखा वो रखा 0.3. उसका डिफॉल्ट गेटवे यही रहेगा सो दैट दे विल बी रिमेन इन अ सेम नेटवर्क. तो यहाँ पर जो मैं देता हूँ 192.168.0.1. इसी तरीके से आप इन वाले पीसीज को भी दे दो. इसका जो IP एड्रेस मैंने यूज किया हुआ है वो किया हुआ है 2.2. सो 192.168.2.2. और इसका जो डिफॉल्ट गेटवे मेरे को रखना है वो रखना 192.168.2.1. जो भी आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख देना. क्लिक ऑन क्लोज. लेट्स से इसी तरीके से मैं PC3 का भी देता हूँ. इसका IP एड्रेस मैंने चेंज कर दिया 2.3. डिफॉल्ट गेटवे जो मेरा रहेगा वो रहेगा 2.1. सो 192.168.2.1. तो आपके पीसी जब कॉन्फ़िगर्ड हो जाएंगे तो एक बार आप बता दें. द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्लिक ऑन योर राउटर 1. और लेट्स से जो भी आपका नाम है, मेरा राउटर 0 है. ओके, हियर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन टैब एंड यू हैव टू सिलेक्ट फास्ट इथरनेट 0/0. तो इसको फास्ट इथरनेट 0/0 पे सेट करने से पहले आप एक बार चेक कर लेना कि आप फास्ट इथरनेट 0/0 पे ही हो. अब वो आप किस तरीके से चेक करोगे, आपको बस इस वाले पे क्लिक करना है एंड यू कैन सी that we are on a fast ethernet 0/0. तो let me just make a use of fast ethernet 0/0. और यहाँ पर जो मैं IP एड्रेस दे दूँगा वो मैं ये वाला दे दूँगा जो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ 0.1 वाला. So I am going to make a use of 192.168.0.1. ये वाला मैंने IP एड्रेस कौन सा दिया जो मैंने यहाँ पर एक डिफॉल्ट गेटवे लिया हुआ. दिस इज गोइंग टू बी माई IP एड्रेस and you have to click on this on. आपकी स्टेट को एक बार कर देना आप ऑन. तो यू कैन सी कि पहले मेरे राउटर पे अभी रेड मार्क था, अभी ग्रीन हो गया. इसी तरीके से सेम सिनेरियो में आपको किसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राउटर 1 पे. तो इस राउटर 1 पे भी आप फास्ट इथरनेट 0/0 पे आ जाओ और यहाँ पर ये वाला एड्रेस दे दो 192.168.2.1 और यहाँ पे क्लिक कर दो ऑन पे. नहीं, सीरियल में आप ये वाला एड्रेस जो आपने यूज किया 192.168 और ये वाला.
ठीक है। अभी मैंने बस एक डिफॉल्ट गेटवे बताया कि विच इज गोइंग टू माई डिफॉल्ट गेटवे, फास्ट इथरनेट का कौन सा डिफॉल्ट गेटवे। अब मैं सीरियल केबल का बताऊंगा। अब आपको किसका आईपी एड्रेस देना है, सीरियल पोर्ट 2/0 पे। अब यहाँ पर आपने को कौन सा आईपी एड्रेस देना है, 192.168.0.0। तो लेट मी जस्ट स्पेसिफाई ओवर 192.168, और इसको भी आप कर देना एक बार, हाँ सीरियल में 192.168.0.0। चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सीरियल पोर्ट में तो मेरा ये वाला आईपी एड्रेस आएगा। ओके ओके, ये वाला आईपी एड्रेस आएगा, मैं वो गलती से 1.1 देना यहाँ पर, तो 1, हाँ तो वो ये मेरे को उसकी कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ पर आप देना 1.1, और इसका एक बार आप कर देना पोर्ट का मोड ऑन, हाँ उससे वो वाले पर। तो ये सीरियल वाले का एक बार आप दे देना आईपी एड्रेस 192.168.1.1, थोड़ा अलग दे देना, 1.0 मत देना, और उसका 1.2 दे देना। इसके बाद लेट से मैं यहाँ पर करता हूँ इसका सीरियल इंटरनेट, और इसमें देता हूँ 192.168.1. ये सीरियल का केबल का आएगा कनेक्शन। तो लेट से अब आप देख सकते हो कहीं पे रेड मार्क तो नहीं आ रहा, मेरा नेटवर्क इज एक्टिवेटेड नाउ। अब यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज करूंगा, प्रोटोकॉल यूज करूंगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब उसको मैं किस तरीके से यूज करूंगा एक बार इसको ध्यान से देखना। राउटर पे मैं क्लिक करूंगा एंड यू हैव टू सिलेक्ट दिस RIP मॉड। अब यहाँ पर करोगे RIP के ऑप्शन को सिलेक्ट। अब इसमें IP एड्रेसेस कौन कौन से दोगे एक बार वो ध्यान से देखना। तो मैं एक बार देता हूँ। तो फर्स्ट IP एड्रेस विच आई एम गोइंग टू गिव इज 192.168.0.0। ये वाला मेरा किसका IP एड्रेस है, इस वाले नेटवर्क का। इसी तरीके से आप करोगे क्लिक ऑन ऐड, यहाँ पर आप दूसरा IP एड्रेस दोगे 192.168. इस वाले का भी तो IP एड्रेस दूंगा, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 1.0, और उसके बाद आएगा मेरा 2.0। ये इस वाले का आपका IP एड्रेस है सीरियल केबल का। तो 1.1 तो दे नहीं सकोगे क्योंकि वो IP एड्रेस आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो यहाँ पर मैंने दिया 1.0 एंड फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 192.168.2.0। तो अब आपके इस राउटर को पता लग गया कि इसको इससे भी कम्युनिकेट करना है अपने वाले से, और इस वाले से भी कम्युनिकेट करना है। तो आपने यहाँ पर एक राउटिंग इन्फॉर्मेशन दे दी है। सेम सिनेरियो में आपको किसके साथ करना होगा, टू दिस राउटर 1। तो यहाँ पर आप RIP पे जाओ और यहाँ पर लेट से एड्रेस ऐड करते हैं 192.168.0.0, 192.168.1.0। सेम IP एड्रेसेस आपके इसमें भी आ जाए जो आपने राउटर 1 में दिया। So let's say in order to make a use of a ping, मैं उसको ping को यूज नहीं कर रहा, I am going to make a use of this packet। तो मैं क्या करूँगा, let's say मैंने पैकेट को सिलेक्ट किया, now I want to transfer packet from this PC0 to PC3। और let's say आपको क्लिक किस पे करना होगा, एक बार आप यहाँ पे क्लिक करना। एक सेकंड, मैंने शायद पहले ड्रॉप कर दिया होगा, एक सेकंड। एक सेकंड, सेकंड, कुछ कॉन्फ़िगरेशन मेरी मिसिंग हो गई। लेट मी जस्ट चेक इट। देख लेना एक बार सारे पोर्ट आपके ऑन है। ये मेरा ऑन है, ठीक है, ये मेरा ऑन है 192.168 है, ठीक है, 168.0.0, ठीक है। पोर्ट मोड मेरा ऑन है 192.168.2.1, ठीक है।
CL भी मेरा ऑन है। यहाँ पे क्लॉक रेट कैसे सेट होता है? एक सेकंड, कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक हुई है, लेट मी जस्ट चेक। पिंग हो रहा है, एक बार पैकेट ट्रांसफर करके देखना, वो भी होगा। हो गया तुम्हारा? एक सेकंड, मैं चेक करता हूँ, कुछ थोड़ा टाइम ले रहा हो शायद, फ्री आई गेस। मैं को एक बार पिंग करके देख लेता हूँ, पिंग भी हो पा रहे हैं कि नहीं। या लेट्स से मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, पिंग 192.168। ये वाला ऐड कॉम्प्लेक्स पीसी है, वो वाला मत यूज करना, उसमें थोड़ी और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन जाती है आपकी। तो एक बार मैं पहले पिंग करके देखता हूँ, रिक्वेस्ट विद टाइम्ड आउट दिखा रहा है, कोई दिक्कत